Hello friends, welcome to H2 Vibrant Academy. In this particular lecture, we will discuss about the formation of differential equations. So let's begin. So how to form a differential equation? So there are the steps that are required to form a differential equation. So in the step 1, we will write down a given equation. Okay. So in the question, it will be given a equation in the terms of x and y. Okay. And in that equation, there will be some arbitrary constant. Okay. So in the step 1, we will write the given equation. ठीक है. और स्टेप 2 में क्या करेंगे? Okay, so in this given equation we will have the arbitrary constant. Okay, it may be 1, it may be 2, it may be 3. Okay, so based on the arbitrary constant we will differentiate the given equation as number of times as number of arbitrary constant. जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे. और स्टेप 3 में क्या करेंगे? एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है. एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट विल रिजल्ट इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन. Okay, so let us solve some problems on this. Okay, so let us consider one example. Okay, so we have, let us take a equation like this: x square plus y square is equal to a square. तो इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? 1 आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है. तो इस इक्वेशन को कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार करेंगे. तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. यहाँ से 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ से क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे. और उसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. एज सिंपल एज दैट. So let us solve this example 1. Okay, so we have, find the differential equation of all the straight lines passing through origin. ठीक है. So this is our x axis, this is our y axis. So all the straight line that is passing through the origin will be like this: y is equal to mx, where m is the slope. ठीक है. So y is equal to mx is the equation of a straight line passing through origin. Straight line passing through origin. Let us take this as equation 1. तो इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? ओनली 1 आर्बिट्री कांस्टेंट. m इज द आर्बिट्री कांस्टेंट. तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक बार. तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस. तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 टाइम. ठीक है. तो उससे क्या हो जाएगा? देखो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m. तो m की वैल्यू क्या आ गई? dy बाई डी एक्स. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1. सो y इज इक्वल टू x dy अपॉन डी एक्स. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 is the differential equation. Okay, so in this particular equation we have eliminated the arbitrary constant, that is m. तो arbitrary constant eliminate करने के बाद जो equation आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं? differential equation. As simple as that. Let us discuss equation 2. Find the differential equation of non-vertical lines in the xy plane. इसको कैसे करोगे? नॉन वर्टिकल लाइन मतलब, नॉन वर्टिकल लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है. तो आवर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m एंड c आर आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है. दिस इज इक्वेशन 1. सो लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 टाइम. एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू m, है ना. दिस इज इक्वेशन 2. So we have to differentiate this 2 times for eliminating the arbitrary constant. So let us differentiate equation 2 one more time. Differentiate equation 2. क्या आ जाएगा? d2y upon dx square is equal to 0. ठीक है. So this is the equation that is obtained after eliminating the arbitrary constant, and that equation is known as differential equation. Okay, so this is the differential equation of all non-vertical lines in the xy plane.
ठीक है, उसके बाद है इक्वेशन एग्जांपल 3। कैसे करोगे इसको, देखो। ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो वी हैव द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सो वी हैव 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही था, वो एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, let us discuss example 4. Find the differential equation of system of circle touching y axis at the origin. So the general equation of circle is general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ठीक है, let us name this as equation 1. तो सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, लाइक दिस। तो इसमें जो सेंटर है हमारा क्या है, माइनस जी और माइनस एफ, उसमें सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर होगा किस फॉर्म का होगा, माइनस जी और 0 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन में एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस दिस 0,0 इज सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसमें 0,0 रखने पे क्या हो जाएगा, c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 2। नाउ वी हैव द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। हेयर g इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा, एक बार। तो 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2g। माइनस 2g की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज द differential equation of system of circles touching y-axis at origin. As simple as that. Let us take the example 5. How we can solve this? Differential equation of all circles touching a given straight line at a given point. So let us take the given straight line as y-axis or given point as 0,0. तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी फॉर्म के हो गया, उसी फॉर्म का हो गया ना, है ना। तो आवर सेंटर इज माइनस जी कॉमा 0 और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, 0,0 पे। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन को माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2gx सॉरी 2xy डिवाइड बाई डी एक्स, 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, this is the differential equation of all circles touching a given straight line at a given point. Okay, so let us discuss example 6. So we have find the differential equation of a family of curves. So we have the family of curves as x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where h and k are arbitrary constant. ठीक है, this is equation 1. So we have to differentiate equation 1 2 times. So 2 times of x minus h plus 2 times of y minus k dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. ओके, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन 2. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस
दिस इज y माइनस के d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस और dy अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस के की वैल्यू, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस एच। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस के की वैल्यू यहाँ रखने से 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x माइनस एच और y माइनस के, इसकी वैल्यू इसमें रखना होगा। ठीक है, लेट अस पुट दिस। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर करो तो ये हो गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर यहाँ से होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से क्या आएगा, देखो लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई दिस। सो वी हैव दिस एज इज इक्वल टू आर स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन करने पे क्यूब हो जाएगा ना, क्यूब। तो दिस इज नथिंग बट क्यूब। ठीक है, अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ से क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द differential equation of family of curves, as simple as that. Okay, so we will discuss further questions in next particular lecture. Thank you.